کبھی نہ ہنسنے والی شہزادی۔ ایک ریاست میں ایک شہزادی تھی جو اپنی پوری حیات میں کبھی ہنسی ہی کیا مسکرائی تک نہ تھی۔ وہ اپنے والد کی بے حد چہیتی تھی، اسی لیے اس کے والد کو اسے اس حال میں دیکھ کر بہت رنج ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے دل میں ایک خیال آیا۔ اس نے ریاست میں ڈھنڈورا پٹوایا کہ جو کوئی شہزادی کو ہنسائے گا وہ شہزادی سے شادی کر سکے گا۔ پھر کیا تھا، جو کر جادوگر اور کئی فنکار بادشاہ کے محل میں حاضر ہو گئے۔ ان سبھی نے اپنے اپنے طریقے سے شہزادی کو ہنسانے کی کوشش کی، لیکن شہزادی ہنسی ہی نہیں۔ وہیں محل کے قریب جیک نام کا ایک بہت ہی ایماندار، تھوڑا سیدھا اور عجیب لڑکا رہتا تھا۔ وہ اس کی غریب ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک بار جیک کی ماں نے اسے باہر جا کر کام ڈھونڈنے کو کہا۔ اس نوجوان نے جلد ہی محل کے پاس کے طعام خانے میں مددگار کے طور پر کام شروع کیا۔ پہلے دن کے کام کے بعد طعام خانے کے مالک نے اسے تنخواہ کے طور پر درجن بھر انڈے دیے، جسے ہاتھ میں لیے وہ گھر نکل پڑا۔ جیک اتنا خوش تھا کہ وہ دوڑتے ہوئے گھر جا رہا تھا اور بالکل محل کے سامنے جہاں شہزادی کھڑکی میں کھڑی تھی وہاں آ کر وہ گر گیا اور اس کے انڈے ٹوٹ گئے۔ شہزادی نے یہ سب دیکھا لیکن اسے بالکل ہنسی نہ آئی۔ جیک جب گھر پہنچا تو اس کی امی نے اس سے کہا، ارے بے وقوف کہیں کے، تم اگر سبھی انڈوں کو اپنے ٹوپی میں ڈال کر لاتے تو وہ ٹوٹتے نہیں نا۔ اگلی بار ضرور یاد رکھوں گا ماں۔ دوسرے روز دن بھر کام کرنے کے بعد جیک کو تنخواہ کے طور پر خنزیر کا ایک بچہ دیا گیا۔ گھر جاتے وقت جیک کو اپنی امی کی باتیں یاد آئی اور اس نے خنزیر کے بچے کو اپنے ٹوپی میں ڈال کر گھر کی جانب دوڑ لگائی، لیکن بالکل محل کے سامنے خنزیر کے بچے نے کسی طرح ٹوپی سے باہر چھلانگ لگائی اور بھاگنے لگا۔ جیک اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑنے لگا اور کیچڑ سے بھرے ایک گڈھے میں پیر پھسل کر گر گیا اور سر سے لے کر پیر تک کیچڑ میں بھر گیا۔ شہزادی اپنے محل کی کھڑکی سے سب دیکھ رہی تھی، لیکن اسے بالکل ہنسی نہ آئی۔ جیک جب کیچڑ سے لت پت حالت میں گھر پہنچا تب اس کی امی نے غصے سے کہا، او جیک، کیا کروں میں تمہارا؟ تم نے اس خنزیر کے بچے کو رسی سے باندھا کیوں نہیں؟ اگلی بار ضرور یاد رکھوں گا ماں۔ دوسرے روز جیک نے کافی محنت سے کام کیا، اس لیے اس کے مالک نے خوش ہو کر رات کے کھانے کے لیے ایک بڑی مچھلی دی۔ جیک نے اپنے امی سے کیے وعدے کے مطابق اس مچھلی کو رسی سے باندھا اور راستے سے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا، لیکن جب گاؤں کی بلیوں کو مچھلی کی مہک آئی تب وہ مچھلی پر ٹوٹ پڑی اور کھانے لگی۔ ختم بھی کیا اور جیک کا اس پر دھیان بھی نہ گیا، کیونکہ صرف مچھلی کے کانٹے ہی رسی سے بندھے ہوئے تھے اور وہ ہمیشہ کی طرح شہزادی کے سامنے سے نکل گیا۔ لیکن شہزادی کو ذرا بھی ہنسی نہ آئی۔ جیک کی امی نے بے چین ہو کر دوبارہ اس سے پوچھا، اس مچھلی کو تم اپنے سر پر اٹھا کر کیوں نہ لائے بے وقوف؟ اگلی بار میں ویسا ہی کروں گا۔ دوسرے روز جیک نے پہلے سے زیادہ محنت سے کام کیا۔ پھر اس کے مالک نے خوش ہو کر گھر لے جانے کے لیے اسے ایک گائے دی۔ جیک کو اپنی امی کو دیا ہوا وعدہ یاد آیا۔ پھر کیا تھا، جیک نے گائے کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور اسے گھر لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ تو بہت مزیدار تھا۔ اور اس بار شہزادی جو بالکنی سے دیکھ رہی تھی وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ وہ اتنا ہنس رہی تھی کہ چاہ کر بھی رک نہیں پا رہی تھی۔ کون ہے وہ؟ کس نے میری بیٹی کی خوشی واپس لوٹائی؟ تو ایک شخص نے کہا، جی میں۔ اور دوسرے نے کہا، میں ہوں۔ نہیں، وہ شخص وہاں ہے والد صاحب جس نے مجھے ہنسایا۔ یہ کہہ کر شہزادی نے جیک کی جانب اشارہ کیا۔ فوراً اسے شاہی محل میں لے جایا گیا اور دوسرے ہی پل جیک بادشاہ کے سامنے تھا۔ اس نوجوان شخص کو دیکھ کر بادشاہ کو بے حد مسرت ہوئی اور بادشاہ نے جیک اور اس کی امی کی تعریف کی۔ وہاں ان کے لیے جشن رکھا گیا۔ کچھ عرصے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ اپنی امی کے ساتھ شاہی محل میں رہنے کے لیے چلا گیا۔ تب سے شہزادی اس کے ساتھ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہی اور ان کی زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی۔ ختم شد۔ جادو میں پھنسی شہزادی۔ ایک زمانے میں ایک کسان رہتا تھا جس کے 2 بیٹے تھے۔ ان کے نام تھے آسٹن اور کارٹر۔ کارٹر، کدھر ہو؟ ادھر آؤ۔ کیا آسٹن، باڑ کا کام پورا کرو، میں دیہات جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ابا۔ دیہات جاتے ہوئے وہ کسان سوچنے لگتا ہے،
हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा गरीब होने से पहले। थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। वहीं करीब 2 लोग भी बैठे थे। उसने उनकी बातें सुनी। बादशाह की बेटी को 2 ड्रैगन और एक बुढ़िया ने कैद कर रखा है। जो कोई उसे वहां से आजाद कराना चाहता है उसे 3 इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। लोग कहते हैं वो इम्तिहान बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, जो कोई इम्तिहान पूरा नहीं कर पाता ड्रैगन उसे खा जाता है। और किसी ने भी इन तीनों इम्तिहानों को पूरा किया तो और वो इंसान शहजादी से शादी करेगा और महल के साथ खजाने का मालिक भी बनेगा। फिर किसान ने सोचा, ओह, कार्टर करेगा ये काम। तीनों इम्तिहान पूरा करेगा, शहजादी से शादी करेगा और फिर सल्तनत का बादशाह बनेगा। कुछ रोज के बाद कार्टर उनके इकलौते घोड़े पर बैठकर जादुई महल के सफर की जानिब निकल पड़ा। उसने अब्बाजान की दी हुई तलवार को हवा में ऐसे लहराई। वो एक बुरे दिल का लड़का था। जब वो चींटियों के टीले के पास से गुजरा तो उसने उससे निस्तनाबूद कर दिया। वो करीब के तालाब से पानी पीने गया तो वहाँ उसने बतख के मासूम बच्चे देखे। उन्हें भी परेशान किया। उसके बाद उसने मधुमक्खियों का एक छत्ता देखा और उसने उसे भी अपनी तलवार से तबाह कर दिया। और आखिरकार वो महल की जानिब पहुँच गया। तुम लोगों की इतनी हिम्मत। उससे इंतजार करवाया, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। आखिरकार एक बूढ़ी औरत ने उसकी मीठी सी आवाज में दरवाजा खोला। कौन है? मैं यहाँ 1 घंटे से खड़ा हूँ। तुम क्या बहरी हो? नहीं, मैं बहरी नहीं हूँ। मुझे शहजादी को बचाना है और बादशाह बनना है। अरे रुको जरा, पहले तुम्हें 3 अम्रों को पार करना है। कैसे अम्र? अम्र? मैं किसी चीज से नहीं डरता। अब मैं सूरजमुखी के बीज हवा में फेंकने वाली हूँ। वो हवा से इधर उधर उड़ जाएंगे। फिर तुम्हें उससे उठाकर थैली में जमा करने हैं। 1 घंटे में करना है। तुम समझती हो मैं बेवकूफ हूँ? ये भी कोई अम्र है? मैं 1 घंटे में वापस आती हूँ। ऐसा कहकर वो ज़ईफ खातून चली गई और वहाँ से रवाना हो गई। ये नामुमकिन है। मैं नहीं उठाऊंगा बीज। जब वो ज़ईफ खातून आई तो उसने दूसरा अम्र बताया। उसने 12 सोने की अंगूठियों को एक गहरे तालाब में फेंक दिया। वो तुम्हें 1 घंटे के अंदर बाहर निकालनी है। मैं दीवाना नहीं हूँ। पानी बहुत गहरा और ठंडा है। तुम अमरों को पूरा नहीं कर रहे हो फर्जंद। चलो खैर, मैं तीसरा अम्र देती हूँ। चलो। ये सब मुझे खराब लग रहा है। जब वो महल में पहुँचे तब वो सीधा अंधेरे कमरे में गए। 3 मुजस्सिमे सफेद कपड़े से ढके हैं। तुम्हारे पास 1 घंटा है ये बताने के लिए शहजादी कौन है। तुमने सही बताया तो वो आजाद, गलत बताया तो फिर? मैं दाएं हाथ वाले को चुनता हूँ। दायां मुजस्सिमा, तुम खुद खोलो। नहीं नहीं नहीं, ड्रैगन बचाओ। नहीं, ड्रैगन बचाओ। कुछ दिनों के बाद किसान ऑस्टिन से कहता है, कार्टर कहाँ है? मुझे उसकी फिक्र हो रही है। अब्बा, मुझे जाने दीजिए महल। नहीं बेटा, अब मेरे इकलौते बेटे को नहीं जाने दूंगा। मुझ पे यकीन कीजिए अब्बा, मैं जरूर वापस आऊंगा। लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए घोड़ा और तलवार नहीं है। ऑस्टिन ने सिर्फ एक पाव का टुकड़ा लिया और चलते चलते ही जादुई महल की जानिब रवाना हो गया। थोड़ी देर के बाद उसने पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया, जहाँ उसने देखा ढेरों चींटियाँ टीला खुद बनाने की कोशिश कर रही हैं। ओह बेचारी चींटियाँ, किसने तोड़ा तुम्हारा घर? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इसे बनाने में। काम होने के बाद वो पानी पीने के लिए तालाब की जानिब गया और उसने बतख के बच्चे देखे। ओह बेचारे बच्चे, तुम्हें भूख लगी होगी। ये लो पाव के टुकड़े।
बतख के बच्चों ने वो पाव का टुकड़ा खत्म किया। उसे जमीन पर गिरा हुआ मधुमक्खियों का छत्ता दिखा। उसने वो उठाकर पेड़ की टहनी पर रख दिया। फिर से महल की जानिब अपना सफर शुरू किया। जब वो पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया। तुम्हें क्या चाहिए बेटा? सलाम, मुझे शहजादी को बचाना है। तुम कोशिश कर सकते हो। उसके बाद उस ज़ईफ औरत ने सूरजमुखी के बीज जमीन पर फेंक दिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं इन्हें चुन लूंगा। 45 मिनट के बाद ऑस्टिन ने तमाम कोशिशें छोड़ ही देने वाला था। इतने में ही उसकी मदद के लिए ढेरों चींटियां वहां आ गईं। उसने उनका टीला बनाने में मदद की थी। वाह, शुक्रिया मेरे दोस्तों, ये थैली तो बीजों से पूरी तरह भर गई। शुक्रिया मेरे दोस्तों। उसके बाद वो ज़ईफ औरत वापस आ गई। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। अब तुम्हें दूसरे अम्र से गुजरना है। तुम्हें 12 अंगूठियां इकट्ठी करनी है। ऐसा कहकर उस ज़ईफ खातून ने अंगूठियां पानी में फेंक दी। ऑस्टिन ने पानी में छलांग लगाई, लेकिन पानी बहुत गहरा था। उन अंगूठियों को नहीं निकाल पाया, लेकिन उसने देखा कि पानी में कुछ हिल रहा है। वो बतख के बच्चे थे जो उसकी मदद करने आए थे। उसने उन्हें पाव का टुकड़ा खिलाया था। ओह, शुक्रिया दोस्तों। अब मेरे पास 12 की 12 अंगूठियां हैं। उसके बाद उस ज़ईफ औरत के पास गया। हाँ, सभी 12 छल्ले, ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। अब मेरे पीछे आओ। फिर उस बूढ़ी औरत ने ऑस्टिन को आखिरी अम्र के बारे में समझा दिया। सामने के 3 मुजस्समे देखे तब वो पहचान ही नहीं पा रहा था। शहजादी कौन सी है? ओह, ये एक जैसे नजर आ रहे हैं। सोचो ऑस्टिन, सोचो, इनमें से शहजादी कौन हो सकती है? फौरन ही सैकड़ों मधुमक्खियां खिड़की से अंदर दाखिल हुईं। वो बीच वाले मुजस्समे पर भिनभिनाने लगी। वो बीच वाला है। ओह, बीच वाले मुजस्समे खुद देखो। सफेद कपड़ा जमीन पर गिर पड़ा और शहजादी नजर आने लगी। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया ऑस्टिन। और फिर उन्होंने देखा कि ड्रैगन महल छोड़कर बाहर की जानिब जा रही हैं। अब तुम इस महल के मालिक हो, तो मैं चलती हूँ। इसके बाद ऑस्टिन ने शर्त जीत ली थी और फिर उसने शहजादी से शादी की ख्वाहिश जाहिर की और शहजादी राजी हो गई। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे और महल में 2 प्यारे से बतख के बच्चे भी नजर आते थे। कहानी खत्म हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. तिलिस्माती कठपुतली हिंदुस्तान में रिवायती एक फन है जिसमें काठ की पुतलियों को रक्स कराने वाला पर्दे के पीछे से सदाएं देता है, जिससे सामने बैठे नाजरीन को ऐसा महसूस होता है कि जैसे काठ की पुतलियां ही बातें कर रही हों। इसी तरह से कठपुतलियों का तमाशा दिखाने वाला जीवन नाम का एक शख्स था। अपने बुजुर्गों से चली आई रिवायत को चलाता आ रहा हूँ, आइंदा भी करता रहूँगा, बस खुदा मुझे ताकत दे। एक रोज जीवन एक देहात में कठपुतलियों का तमाशा कर रहा था। उसके पास का पर्दा जरा फटा हुआ था जिसमें से वो तमाशा दिखाया करता था। अरे भाई, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? हमें सब नजर आ रहा है, आवाज तो तुम ही निकाल रहे हो। कोई कठपुतली नहीं बोलती। वही बाप दादा की घिसी पिटी दास्तान और पुरानी कठपुतली। जाओ भाई, कुछ नया लाओ, वक्त बर्बाद मत करो। तमाम अफराद उसका मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। ए खुदा, हर जगह यही सुनने को मिलता है। अब मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूं? अब मेरा क्या होगा? जीवन एक दरख्त के नीचे सो जाता है और नींद में उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। मैं 2 दिन फाका रहूंगा, लेकिन नई कठपुतली लेके रहूंगा। दूसरे ही रोज जीवन कठपुतली की दुकान की जानिब आता है और दुकानदार से कहता है, ओ भाई, मुझे इतने पैसे में एक कठपुतली चाहिए। इतने पैसे में क्या आएगा? इतने में तो कठपुतली के लिबास भी ना आए भाया, तो मेरी पुरानी वाली ऊपर से ले लो। ठीक है, वो जो कोने में धूल खाती पड़ी है वो कठपुतली ले जाओ।
इतनी रकम में वही आ सकती है, बहुत बरसों से पड़ी है। शायद ये तुम्हारी मुंतजिर थी भाई। जीवन वो कठपुतली को साफ करके दुकान से चल देता है और धूप की वजह से एक दरख्त की छांव में सो जाता है। जागो जीवन, जागो, मैं बोल रही हूँ। जीवन की आंखें खुल जाती हैं और उसे कौन सदाएं दे रहा है देखता है और फिर जीवन हैरान ज़दा रह जाता है। अरे खौफ ना करो जीवन, मैं एक तिलिस्माती कठपुतली हूँ जो उस दुकान में बरसों से तुम्हारी मुंतजिर थी। तुम्हारे लम्स से ही मुझे जिंदगी मिल गई है। यही ऊपर वाले की मर्जी है, चाहो तो मुझे अपने साथ लेके खेल कर सकते हो। पर मुझ में जरा भी ताकत नहीं है खेल करने की। तभी कठपुतली चुटकी बजाती है और लजीज खाने उसके सामने आ जाते हैं। अरे ये क्या, तुम वाकई तिलिस्मी हो। अब मेरे तमाशे से कोई बेजार भी नहीं होगा। क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगी? जी जी, आज से आप मेरे आका हैं। आपका जो हुक्म होगा मैं वही करूँगी। दूसरे ही रोज जीवन एक देहात में अपना तमाशा दिखाने के लिए जाता है। आओ भाई, देखो भाई, कठपुतली का अनोखा खेल। बगैर पर्दे, बगैर मेरी आवाज निकाले जादू दिखाएगी कठपुतली। लोगों का मजमुआ लगने लगता है। मैं तुम्हें गधा बना सकती हूँ। बना कर दिखाऊं? अकड़म बकड़म चूचा, मेरे आका का काम करने के लिए चाहिए एक गधा। यही है तुझसे जादूगर का सौदा। देखते ही देखते आदमी गधा बन गया। अकड़म बकड़म चूचा, मेरे आका को करनी है सैर थोड़ी, बन जा तो उनके लिए नाचने वाली घोड़ी। देखते ही देखते वो शख्स भी घोड़ी बन जाता है और सब लोग खूब तालियां बजाते हैं। सब लोग जीवन को खूब बख्शीश भी देते हैं और इस तरह से जीवन के तिलिस्म को शोहरत मिलने लगती है। और इस तरह से तिलिस्माती कठपुतली और मेहनत के साथ वो एक बड़ा जादूगर बन जाता है। शहजादी रोज और सुनहरा परिंदा। कई साल पहले एक दूर की रियासत में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी। उसके बाल लंबे और लाल थे और उसे गुलाब के फूल बेहद पसंद थे और इसीलिए सभी उसे शहजादी रोज के नाम से जानते थे। रोज शाम शहजादी रोज अपनी बालकनी में जाती और ताली बजाती। तब कहीं से एक सुनहरा परिंदा आकर उसके कांधे पे बैठ जाता और फौरन शहजादी के बाल तेज लाल रोशनी में चमकने लगते। जब परिंदा अपनी मीठी आवाज में गाने लगता तब शहजादी रोज भी उसका साथ देती और उसी वक्त रियासत की सारी आवाम मीठे सपने देखते हुए सो जाती, बिल्कुल अलग सुबह तक। यूं कुछ साल गुजर गए। रोज शाम शहजादी रोज उसके छोटे से सुनहरे परिंदे के साथ अच्छी सी लोरी गाती, जिससे तमाम लोगों को मीठे सपने आते और सुबह तक अच्छी नींद मिलती। लेकिन एक रोज एक भयानक वाकया पेश आया। एक बेरहम बूढ़ी डायन को शहजादी का पता चल गया और उसने बदवा देने का फैसला किया। आब्राकडाब्रा, सिमसलाबीम, होने दो रोज का कलर डीम। डायन के ऐसा कहते ही शहजादी रोज के बाल कोयले से काले हो गए। उस शाम को भी शहजादी रोज ने अपनी बालकनी में जाकर तालियां बजाई, लेकिन जब सुनहरा परिंदा आया तब उसके बाल लाल की जगह काले रंग में चमकने लगे और जैसे ही सुनहरा परिंदा सुरीली आवाज में गाने लगा वैसे ही शहजादी भी लोरी गाने लगी, जिसे सुनकर तमाम लोग सो गए। लेकिन उन्होंने उस रात मीठे नहीं बल्कि खौफनाक सपने देखे। दूसरे दिन जब शहजादी को यह बात पता चली तो उससे बहुत अफसोस हुआ। उसने परिंदे से पूछा, सुनहरे परिंदे, मुझे बताओ ना, मैं मेरी आवाम के मीठे सपने पहले जैसे कैसे करूं ताकि वो सुबह तक चैन की नींद सो पाए? काले बाल गुलाब जल में। जवाब देने के लिए परिंदे ने चहचहाहट की। शहजादी को सलाह से हैरत हुई और उसने बिल्कुल वैसे ही किया। उसने एक बर्तन में पानी लेकर उसमें गुलाब की पंखुड़ियां डाल दी। उसके बाद उसने अपने बाल उस गुलाब जल में डुबो दिए और फिर मौजज़ा हुआ। उसने जैसे ही अपने बाल उस गुलाब जल में डुबोए उसके बाल पहले की तरह लाल हो गए
फिर आसमान भी चकाचौंध हो गया। शहजादी ने लोरी गाई और तमाम लोग मीठे सपने देखते देखते सुबह तक सोते रहे। लेकिन यहाँ वो बेरहम डायन उसकी बद्दुआ नाकाम होने की वजह से बहुत गुस्सा हुई और उसने दोबारा बद्दुआ देने का फैसला किया। आब्राकडाब्रा सिमसालाबिम, होने दो रोज का कलर डिम। दोबारा शहजादी के बाल कोयले से काले हो गए, लेकिन इस बार उस बेरहम डायन ने रियासत के तमाम गुलाब उसके उड़ने वाले झाड़ू पर बैठकर निकाल लिए। अब देखती हूँ कि तुम मेरी बद्दुआ से कैसे बचती हो। और वो गुस्से से इतराई और यहाँ फिर से अफसरदा शहजादी ने परिंदे से दरियाफ्त किया, सुनहरे परिंदे मुझे बताओ ना, मैं मेरी रियाया के सपने पहले जैसे मीठे कैसे कर सकती हूँ ताकि वो सुबह तक चैन की नींद सोए। काले बाल गुलाब जल में। जवाब देने के लिए परिंदे ने चहचहाहट की, लेकिन मैं अब गुलाब कहाँ ढूंढूं? काले बाल गुलाब जल में। ये कहकर वो परिंदा उड़ गया। शहजादी को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। जो कुछ हुआ उससे उसे इतना बुरा लग रहा था कि उसकी आंखें भर आई और आंसू की एक बूंद जमीन पर गिरी। बिल्कुल उसी वक्त एक जवान और खूबसूरत शहजादा जो शहजादी की बालकनी के नीचे खड़ा था, उसने एक छोटा डिब्बा खोलकर उसमें से एक लाल रंग का बाल निकाला और उसने उससे झुककर शहजादी के आंसू पर लगा दिया। फिर क्या था? मौजज़ा हुआ। अचानक वो लाल बाल एक खूबसूरत गुलाब की कली में बदल गया। शहजादे ने वो गुलाब उठाया और शहजादी तक ले गया। गुलाब देखते ही उसने अपनी आंखें पोंछी और उसकी पंखुड़ियां निकालकर बर्तन के पानी में डाल दी। उसके बाद जैसे ही उसने अपने बाल उसमें डुबोए, वो बद्दुआ टूट गई और सभी ने चैन की सांस ली। फिर बादशाह ने शहजादे से सवाल किया, नौजवान, तुम्हें वो लाल बाल कहाँ से मिला? जब राजकुमारी और मैं दोनों छोटे थे तब मैंने राजकुमारी का एक बाल बड़े प्यार से संभाल के रखा था। राजकुमारी ने भी मेरा एक बाल तोड़कर अपने पास संभाल कर रखा था। ये सच कह रहे हैं अब्बा जान? शहजादी ने शहजादे की बात से हामी भरी और एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसे खोलकर उसमें से शहजादे का एक बाल निकालकर तमाम लोगों को दिखाया, जिसे देख सभी को बहुत मसरत हुई। उसी दिन शहजादे और शहजादी ने एक दूसरे से निकाह भी कर लिया। और जब बेरहम डायन को ये पता चला कि उसकी बद्दुआ फिर से टूट गई है, तब वो गुस्से से तिलमिला उठी और गुस्से से फूल फूल कर वो ऐसे फट गई कि उसके हजारों टुकड़े इधर उधर हर जगह पर बिखर गए। कुछ अरसे बाद रियासत के हर एक बागीचे में फिर से गुलाब खिलने लगे। हर जगह गुलाब ही गुलाब थे और वो रियासत लाल रंग के गुलाबों से भर गई, जैसे शहजादी के लाल बाल थे। और हर रात शहजादा और शहजादी उस बालकनी में आते और रोज उस सुनहरे परिंदे से मिलते और गाना गाते, जिसके बाद तमाम लोग मीठे सपने देखते हुए सुबह तक चैन की नींद लेते। खत्म शुद। शहजादी और मटर। एक वक्त की बात है, एक शहजादा था जो निकाह करना चाहता था। क्योंकि वो शहजादा था तो उसे चाहिए थी एक शहजादी। रानी ने उसे बड़े अदब से पालन पोषण किया था, तो उसकी ये ख्वाहिश थी कि उसकी होने वाली बीवी भी बड़ी अदब तरीन हो। उनके सल्तनत में कोई ऐसी शहजादी नहीं थी जो शहजादे के लिए सही हो। तो शहजादा शहजादी की तलाश में पूरी दुनिया घूमने निकला, पर जितनी भी शहजादियों से वो मिला उसमें कोई ना कोई खामी थी। किसी की नाक ऊंची थी तो किसी का कद छोटा, किसी की चाल में खोट थी तो किसी की आवाज में। उसे ऐसी कोई शहजादी नहीं मिली जिसे वो अपनी बीवी बना सके। गमज़दा होके वो अपनी सल्तनत वापस लौट आया और सोचा कि उसकी किस्मत में बीवी की फरहत है ही नहीं। एक दिन जब वो अपने महल वापस पहुंचे, अचानक जोरों की बारिश होने लगी। फलक में काले बादल छा गए और कड़कती बिजली की आवाज ने महल की दीवारों को हिला कर रख दिया। महल के सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर आग जलाकर इस कुदरत के कहर को देखने लगे।
اور تبھی محل کے خصوصی دروازے پر کسی کے کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ شہزادے کے والد صاحب نے جب وہ دروازہ کھولا تب باہر ایک بہت خوبصورت شہزادی کھڑی تھی۔ وہ بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اس کے لمبے سنہرے بال اور ریشم کے جوتوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک شہزادی ہے۔ وہ ایک نزدیکی سلطنت سے اپنی سلطنت واپس لوٹ رہی تھی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر ملکہ کو یقین نہیں ہوا کہ وہ ایک شہزادی ہے۔ ملکہ نے سوچا کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ بادشاہ سلامت اسے اندر لے کے آئے اور اس کا تعارف ہر کسی سے کرایا۔ ملکہ نے کہا تمہارے اس کہانی پر یقین کرنا مشکل ہے۔ میں نے کبھی ایسی بدحال شہزادی نہیں دیکھی۔ تیز ترین ملکہ کو کچھ گڑبڑ نظر آئی۔ آخر انہیں محل کی حفاظت جو کرنی تھی، اصلیت جاننے کے لیے انہوں نے ایک ترکیب کی۔ انہوں نے رسوئی گھر سے ایک سوکھے مٹر کا دانہ لیا اور اس مٹر کو خوابگاہ کے بیچوں بیچ رکھ دیا، اور پھر انہوں نے 20 ریشم سے بھی ملائم گدے اس مٹر کے اوپر رکھ دیے۔ اتنے دلکش اور ملائم گدے پہلے کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ ان گدوں سے رانی کی پسند اور پار کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ پہلا گدا گہرے گلابی رنگ کا پرندوں کے نرم پروں سے بنا ہوا تھا۔ دوسرا بینگنی رنگ کا ریشم کے دھاگوں سے بنا ہوا تھا۔ تیسرا سفید رنگ کا ململ سے بھی نرم گدا جس پر ایک ہنس کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ پٹی والے گدے، سپرنگ والے گدے، زری والے گدے، لینن کے نرم اعلیٰ درجے کے گدے اور سونوں کے دھاگے سے بنے ہوئے گدے جس پر سلطنت کی مہر اور نام لکھا ہوا تھا۔ اور مٹر کے اوپر یہ سارے حسین گدے رکھنے کے بعد شہزادی کو اس کے اوپر سلایا گیا۔ ہافتے ہوئے گدوں کو ایک دوسرے کے اوپر اور یہ فضول محنت کرنے کے بعد رانی بولی اب پتہ لگے گا کہ اصل میں یہ لڑکی شہزادی ہے یا نہیں۔ جب صبح سونے کے بعد شہزادی ناشتے پر آئی تو وہ بڑی نڈھال تھی۔ کیا تمہیں اچھی نیند آئی؟ رانی نے پوچھا۔ نہیں، میں نہیں سو پائی۔ شہزادی نے جواب دیا۔ میرے بستر میں مجھے کچھ چبھ رہا تھا، کوئی ایسی چیز جو پتھر سے بھی زیادہ سخت تھی۔ میرے خیال میں وہ توپوں میں استعمال کیے جانے والا لوہے کا گولا ہی تھا۔ میرے پورے بدن پر گھاؤ کے نشان پڑ گئے ہیں۔ سب یہ سن کر بڑے خوش ہوئے کیونکہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ وہ سچ مچ ایک راجکماری تھی، کیونکہ اتنی کومل اور نرم جلد کسی شہزادی کی ہی ہو سکتی ہے۔ شہزادے نے اس کے ساتھ شادی کر لی اور اس مٹر کے دانے کو بستر کے نیچے سے نکال کر عجائب گھر میں رکھ دیا، جہاں وہ مٹر آج بھی ہے۔ چھوٹی جل پری۔ برسوں پہلے دریا کے نیچے ایک شہر تھا جس کا نام تھا اٹلانٹس۔ وہاں کا بادشاہ اورین تھا اور اس کی ایک بیٹی تھی۔ وہ بہت حسین تھی۔ وہ جل پری صرف حسین ہی نہیں تھی بلکہ وہ بے حد پیارا گاتی بھی تھی۔ جل پری کو کنارے پر جا کر تب تک انسانوں کی دنیا دیکھنے کی اجازت نہیں تھی جب تک وہ 20 برس کی نہ ہو جائے۔ ہر برس معصوم جل پری اپنے والد سے اوپر کنارے پر جانے کی اجازت مانگنے کے لیے درخواست کرتی۔ صبر کرو میری بچی، تمہیں موقع ملے گا۔ آخرکار اس روز چھوٹی جل پری کی 20ویں سالگرہ تھی۔ اس روز کے آخر میں اس کے والد نے اس کی جانب رخ کر کے کہا، وقت آ گیا ہے میری پیاری بچی، دریا کے کنارے پر جاؤ اور واپس لوٹ کر آنا۔ ہمیں بتانا کہ تم نے کیا کیا دیکھا، لیکن ذرا احتیاط سے اور انسانوں سے تم کچھ فاصلہ رکھنا۔ چھوٹی جل پری نے اپنے والد کو بوسہ دیا، انہیں الوداع کہا اور اوپر کنارے پر جانے کے لیے تیرنا شروع کیا۔ وہ رات کا وقت تھا۔ کنارے پر پہنچنے سے پہلے اس نے ایک جہاز دیکھا۔ وہ روشن تھا کیونکہ اس پر سینکڑوں لالٹین روشن تھی۔ آخرکار وہ تیر کر جہاز کے قریب گئی اور جاتے ہی اس نے نامعلوم دل فریب موسیقی سنی۔
ऐसी आवाज कैसे तैयार की जाती है, ये जानने के लिए वो बेताब थी। जहाज के एक झरोके से देखने के बाद उसने देखा कि अंदर जहाज के निचले कमरे में एक जश्न मनाया जा रहा था, सालगिरह का। ये जश्न एक नौजवान शहजादे के लिए था। वो बेहद खूबसूरत था। जलपरी ने पहली मर्तबा इतने हसीन नौजवान का दीदार किया था। जलपरी फौरन उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। जरा देर बाद, देर हो रही है, मुझे घर वापस लौटना होगा। वो नीचे जाने वाली थी। इतने में ही एक अजीब सी आवाज आई जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। एक तूफान। समंदर ने खौफनाक तूफान की शक्ल इख्तियार की। शहजादे का जहाज हिलने डुलने लगा। खौफ से सब चीखने और चिल्लाने लगे। मल्लाह उस जहाज को बुलंद मौजों से बचाने की कोशिश कर रहे थे और फिर एकदम से वो जहाज समंदर से बाहर आया और एक चट्टान से टकरा गया, शिकस्ता हो गया। कई अफराद शहजादे के हमरा समंदर में गिर गए। जलपरी को मालूम था कि इंसान पानी के अंदर जिंदा नहीं रह सकते। नहीं, मैं मेरी मोहब्बत को गर्क होने नहीं दे सकती। ताहम वो शहजादे को जमीन पर वापस ले आई, जहाँ उसने पूरी रात उसकी खिदमत की। समंदर किनारे आते आते शहजादा बेहोश हो गया तो जलपरी ने उसे एक छोटे चर्च के सामने रेत पर लेटा दिया और मदद के लिए आवाजें लगाने लगी। फिर वो करीब के ही किसी चट्टान पर तैर कर चली गई और देखने लगी कि कोई उसकी मदद के लिए आता है या नहीं। शहजादे ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि चर्च की तरफ से एक लड़की आ रही है। जब उस लड़की ने शहजादे को देखा तो वो फौरन चर्च की तरफ भागी ताकि मदद हासिल कर सके। लोग दौड़ते हुए आए। शहजादे को उठाकर खैरियत से ले जाया गया। उसके बाद छोटी जलपरी अपने घर लौट गई। कुछ रोज वो खुद में रंजीदा और खोई खोई रही, लेकिन छोटी जलपरी शहजादे को नहीं भूल पा रही थी। तो उसने एक बेवकूफाना तरीका सोचा, तैर कर जाने का और उस अजनबी के साथ रहने का जिसे उसने अपना दिल दिया था। दूसरे रोज छोटी जलपरी ने उनके वजीर केकड़ा सेबेस्टियन को बुलाया। वो फौरन हाजिर हुआ और उसने कहा, शहजादी, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मुझे उर्सुला के पास ले चलो, समंदर की जादूगरनी। सेबेस्टियन पूरी तरह हैरान रह गया और उसने कहा, हाँ, क्या आपको मालूम नहीं है कि वो कौन है? वो बुरी जादूगरनी है। आखिर क्यों? फिर उसने सेबेस्टियन को मुकम्मल दास्तान सुनाई, उस तूफान की और शहजादे के साथ रहने की अपनी ख्वाहिश भी बताई। थोड़ी बहस करने के बाद सेबेस्टियन भी बेवकूफों की तरह उसे उर्सुला के पास ले जाने के लिए तैयार हुआ। समंदर की जादूगरनी समंदर के अंधेरे और ठंडे इलाके में रहती थी और उसका घर डूबे हुए मल्लाहों की हड्डियों से बना हुआ था, जिसकी हिफाजत समंदर के जहरीले सांप करते थे। छोटी जलपरी और सेबेस्टियन जैसे ही उर्सुला की गुफा में दाखिल हुए, वो समंदर की जादूगरनी जादुई गोले के सामने खड़ी थी और उसमें देख के शैतानी हंसी हंस रही थी। उर्सुला, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मेरी प्यारी शहजादी, मैं जानती हूँ तुम क्यों आई हो। तुम ऐसे शहजादे से शादी करना चाहती हो जिससे तुम मिली भी नहीं। तुम अपनी दुम से निजात पाना चाहती हो। डरो मत, मेरे पास इलाज है जो बिल्कुल कामयाब है। तो तुम मेरी मदद कर पाओगी? मेरी प्यारी बच्ची, वही तो मैं कर रही हूँ, इसीलिए तो मैं जी रही हूँ। मैं तुम्हारी दुम गायब कर सकती हूँ। इसमें बहुत दर्द होगा। बस मुझे बताओ कि क्या करना होगा। उर्सुला ने अपने हाथों से अपने जादू खाने से एक दवा जल्दी से निकाली। बस इस दवा से तुम 2 पैरों पर चल पाओगी। मुझे वो दवा दे दो। उर्सुला डराते हुए हंसने लगी और कहने लगी, नहीं 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 नहीं, दवा हासिल करने के लिए एक शर्त है। कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, इसके बदले मैं कुछ लूंगी। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। मैं एक शहजादी हूँ जिसके पास बेशुमार दौलत है। मैं तुम्हें क्या दूं? तुम्हारी दिलकश आवाज मुझे चाहिए। उसके बाद तुम इंसान बन पाओगी। शहजादा तुमसे इश्क करने लगेगा और तुम्हें चूमेगा। एक बार उसने तुम्हें चूमा तो तुम हमेशा के लिए इंसान बन जाओगी, खुश रहोगी। लेकिन अगर तुमने शर्त पूरी नहीं की
तो तुम समुद्री झाग बन जाओगी। ठीक है, मैं मेरी आवाज देने के लिए राजी हूँ। जादूगरनी ने छोटी जलपरी को दवा दे दी और उसकी आवाज ले ली। दूसरे दिन शहजादे के लोगों को एक खूबसूरत लड़की समंदर किनारे महल के पास पड़ी हुई मिली। वो लोग उसे अंदर ले गए और जब उसने चलना शुरू किया तब ऐसा लग रहा था कि उसे चलने में तकलीफ हो रही हो, जैसे वो छुरियों पे चल रही हो। खादिमों ने उसे अच्छे लिबास पहनाए। फिर शहजादा उससे मिलने आया। मेरी देखी हुई लड़कियों में सबसे खूबसूरत लड़की हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? लेकिन वो खामोश रही। वो वही छोटी जलपरी थी। भले ही उसने बात न की हो, लेकिन वो उसी लम्हे शहजादे की पसंदीदा बन गई। वो छोटी जलपरी को लिए बिना कहीं पर भी नहीं जाता था। कुछ वक्त बाद शहजादे ने बताया कि वो उसकी कितनी फिक्र करता है और जलपरी को लगा कि उसका दिल खुशी से फूल जाएगा। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी भी मेरे सच्चे प्यार की तलाश में हूँ। उसने तूफान के बारे में बताया और एक सुंदर लड़की ने उसे कैसे बचाया ये भी बताया। उसके बाद वो कैसे उसके ख्वाबों में आने लगी और वो उससे प्यार करने लगा ये भी बताया। और उसने कहा कि मैं उससे मिलूंगा तो उसी से शादी करूंगा। छोटी जलपरी बहुत गमज़दा हुई, क्योंकि वो शहजादे को नहीं बता पा रही थी कि वो वही लड़की है, और उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपनी दुम, अपनी आवाज और अपना घर, सिर्फ उसके साथ रहने के लिए। दूसरे दिन किसी इलाके का एक बादशाह शहजादे से मिलने आया। बादशाह के साथ उसकी खूबसूरत बेटी भी थी, और जैसे ही शहजादे ने बादशाह की बेटी को देखा, उसने उसे पहचान लिया। ये वही लड़की थी जिसे उसने दरिया के साहिल पर देखा था। शहजादे ने उससे शादी के लिए पूछा और वो तैयार हो गई। तीसरे दिन छोटी जलपरी ने सोचा कि उसका दिल टूट जाएगा, क्योंकि उसी दिन शहजादा उस दूसरी शहजादी से शादी करने वाला था, और जब सूरज गुरूब होगा तो वो मर जाएगी, क्योंकि समंदर की जादूगरनी ने उसे ऐसा करने का वादा किया था। शादी एक जहाज पर होने वाली थी। भारी दिल लेकर जलपरी वहाँ हाजिर हुई ताकि आखिरी बार अपने शहजादे को देख सके। उसी दिन सुबह छोटी जलपरी के वालिदैन उर्सला से मिले और उसे धमकाया भी। शैतानी जादूगरनी ने उन्हें एक खंजर दिया और कहा कि अगर उनकी बेटी ये खंजर शहजादे के दिल में डाल दे तो उसका जादू टूट जाएगा। शादी हो रही थी, इसीलिए जलपरी रोने के लिए जहाज के ऊपरी हिस्से में गई। उसने देखा कि उसके वालिदैन पानी के ऊपर आए थे और वो रंजीदा थे। तुमने क्या किया मेरी बच्ची? उसकी माँ रो रही थी। जल्दी करो, तुम अब भी खुद को बचा सकती हो। उस जादूगरनी ने हमें ये जादुई खंजर दिया है। तुम इस शहजादे को मार दो, और जब उसका खून तुम्हारे कदमों पर गिरेगा तो तुम्हारे कदम दुम में तब्दील हो जाएंगे और तुम फिर से जलपरी बन जाओगी। जल्दी करो, सूरज निकलने ही वाला है। जब उसके वालिदैन चले गए तब वो खंजर लेकर शहजादे की तरफ भागी, और उसने देखा कि वो उसकी नई दुल्हन के साथ खुश है। खंजर का एक वार और वो आजाद होने वाली थी। उसने तेज धार खंजर की ओर देखा और फिर शहजादे की जानिब। वो अब भी उससे प्यार करती थी, और वो फिर से जहाज के ऊपरी हिस्से पर चली गई और उसने उस छुरे को दरिया में दूर फेंक दिया। दूसरे दिन शहजादे ने अपने खादिमों को चप्पा चप्पा छान मारने के लिए हुक्म दिया, लेकिन छोटी जलपरी का कहीं कोई नामो निशाना मिला। शहजादा गमज़दा था और अक्सर देर रात तक समंदर किनारे जाकर बैठने लगा और अपनी दोस्त को याद करने लगा। कभी कभी वो पानी पर तैरते बुलबुलों को देखता जो चांद की रोशनी में चमकते, और उन बुलबुलों में उसे छोटी जलपरी का चेहरा नजर आता। कहानी समाप्त। बर्फ की मलिका। ग्रेडा एक जवान लड़की थी जो अपनी दादी अम्मी के साथ रहती थी। उसका मंगेतर वहीं करीब वाले घर में रहता था और उसका नाम के था। ग्रेडा और के इन दोनों के घरों के दरमियान पैदल का रास्ता था। वहाँ ग्रेडा और के ने अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर सुर्ख गुलाब के पौधे लगाए हुए थे, और वो हमेशा शादी करने के बारे में बातें किया करते थे। सर्दियों के दिनों में जब एक दिन वो गुलाब के पौधों के पास बैठे थे, तब दादी अम्मी की आवाज आई, देखो बर्फ की मलिका कतरे इकट्ठा कर रही है।
गैडा और के फौरन ही खिड़की की जानिब दौड़े। के ने बर्फ की मलिका को खिड़की से देखा और अपनी जबान बाहर निकालकर उसे चिढ़ाने लगा। ओहो, ऐसा मत करो के, अगर वो तुम्हें देख लेगी तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। फिर वो गैडा के घर के करीब वाले अपने घर की खिड़की से चढ़कर अपने कमरे में वापस आ गया। उस शब जब वो सोने जा रहा था तब उसने अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखा और तब उसने एक अजीब सा बर्फ का कतरा देखा। वो कतरा बर्फ की मलका बनने तक तेजी से बढ़ता ही गया। उसके हाथ में तुर्किश मिठाई की रकाबी थी। ये खुद को रोक नहीं पाया और उसने रकाबी से मुट्ठी भर के मिठाई छीन ली। उसके लालचीपन ने जैसे ही इस लालच में उसने वो मिठाई अपने मुंह में डाली, उस खातून ने उसकी कलाई को पकड़ा और उसे पकड़कर खिड़की से बाहर अपनी बिन पहियों की गाड़ी में उसे खींच लिया और घोड़ों के झुंड ने फौरन ही उड़ान भर ली। के को बहुत डरना चाहिए था, लेकिन मिठाई ने उसके दिमाग की सुध-बुध और सोच को मांद कर दिया था। अगली सुबह जब गैडा के से मुलाकात को आई तो वो वहाँ पर नहीं था। गैडा ने हर जगह उसे तलाश किया। वो गांव के मैदान की जानिब भागी और जोर से चिल्लाई, क्या आपने के को देखा है? क्या मेरे के को देखा है? लेकिन उसे किसी ने नहीं देखा था। किसी को पता नहीं था वो कहाँ गया। मेरा के बस जिंदा हो, ओहो मेहरबानी, मेरा के जिंदा हो। हमें लगता है वो नहीं मरा होगा। गैडा ने ऊपर देखा, वहां एक चिड़िया बैठी हुई थी। जब हम खाना ढूंढते हैं तब हम घर की छतों पर बैठते हैं और सब कुछ देखते हैं। अगर वो नदी में गिरा होगा तो हमें नहीं पता। मैं जाकर नदी की परी से पूछूंगी। गैडा के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। अगर वो डूब गया होगा तो नदी की परी को मालूम होगा। और वो नदी के पास गई और जोर से चिल्लाई, नदी परी, क्या मेरा के यहाँ आया था? क्या वो तुम्हारे गहरे पानी में डूब गया है? और नदी परी पानी से ऊपर आई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी और उसने कहा, ओह मेरी प्यारी बच्ची, नहीं, तुम्हारा के यहाँ नीचे नहीं आया, अब मत रोना। फिर वो कहाँ है? काश मुझे मालूम होता, लेकिन एक ज़ईफ चुड़ैल जो मेरे किनारे रहती है वो तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन तुम उससे अपनी हिफाजत करना। मैं अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी करूंगी, मेहरबानी करके मुझे वहाँ ले जा सकती हैं? क्यों नहीं, उस छोटी सी नाव में आओ, मेरी लहरें तुम्हें चुड़ैल की झोंपड़ी तक ले जाएंगी। फिर नदी परी गायब हो गई और गैडा नाव में सवार हो गई। जैसे जैसे लहरें तेज हो रही थी वैसे वैसे छोटी नाव तेजी से तैर रही थी। फिर गैडा को एक झोंपड़ी नजर आई और एक ज़ईफ खातून लड़खड़ाते हुए बाहर आई। वो झुकी हुई थी और हाथ में उसके छड़ी थी। ज़ईफ औरत नदी के किनारे आई और नाव को अपनी छड़ी से थामकर जमीन की जानिब खींच लाई। उसने बाहर आने में गैडा की मदद की। हालांकि गैडा इस अजीब सी ज़ईफ चुड़ैल से खौफजदा थी, लेकिन उसने भी के को तलाश करने की ठान ली थी। आओ और मुझे बताओ तुम कौन हो? गैडा ने उसे सब कुछ बताया। क्या आपने मेरी के को देखा है? नहीं, लेकिन शायद वो आ सकता है। वो झोंपड़ी के अंदर चले गए। वहां मेज पर खूबसूरत जहरी का एक कटोरा था। गैडा, अब परेशान मत होना, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे लिए रास्ता ढूंढ लेगी। अब उन चेरियों को तुम खाओ। जब गैडा खा रही थी तब ज़ईफ औरत उसके लंबे गेसुओं को सोने की कंघी से संवारते हुए धीरे धीरे बोलने लगी, मैं तुम्हारे जैसी एक पोती के लिए तरस गई हूँ। गैडा के बारे में भूल गई क्योंकि उस ज़ईफ औरत ने तिलिस्माती कंघी से उस पर तिलिस्म कर दिया था। ज़ईफ चुड़ैल गैडा को अपने पास रखना चाहती थी। थोड़ी देर बाद गैडा आहिस्ता से बोली, मैं यहाँ हमेशा के लिए ही रहूंगी। एक दिन बागीचे में गैडा ने सुर्ख गुलाबों को देखा। उन्होंने उसे कह की याद दिला दी। कह की याद ने ज़ईफ औरत के तिलिस्म को तोड़ दिया और गैडा बागीचे की गेट की जानिब भाग गई। वो ज्यादा दूर भी नहीं भाग सकी थी और पत्थर के पुल के दरमियान रुक गई। अचानक उसे ट्रोल्स ने घेर लिया। ट्रोल्स
गेड़ा को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। वो ताजा और खूबसूरत है और उसे बादाम और शहद खिलाया है। वो कितनी लजीज लगेगी। वो मेरे साथ खेलेगी, मुझे उसके मफलर और उसके खूबसूरत कपड़े देगी। छोटी ट्रोल लड़की जो गैडा की ही उम्र की थी, उसके चेहरे पर मायूसी थी। उसने गैडा को कमर से थामा और कहा, वो तुम्हें नहीं मारेंगे, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। सभी ट्रोल्स हंसे। फिर वो उस छोटी ट्रोल लड़की की खातिर गैडा को छोड़ने के लिए रजामंद हुए। गैडा ने उसे अपनी कहानी बताई कि वो कैसे कितनी मोहब्बत करती थी और उसे वो कैसे ढूंढेगी। खाने पीने के बाद वो पत्थर के पुल के नीचे से जा रहे थे। तब उनके ऊपर 100 से ज्यादा कबूतर सोने का नाटक करके उन्हें देख रहे थे और सुन रहे थे। हमने केको देखा है। कहाँ पर? बर्फ की मलिका की गाड़ी में। वो कहाँ जा रहे थे? लैपलैंड, बर्फ की मलिका का महल है वहाँ। छोटी ट्रोल लड़की ने संजीदगी से देखा और सिर हिलाया। मैं तुम्हारा इश्क पाने के लिए तुम्हारी मदद करूंगी। छोटी ट्रोल लड़की अपने पालतू जानवर बारासिंह के पास गई और आंखें बंद करके कहा, मैं तुम्हारी रस्सी खोल दूंगी। तुम फौरन दौड़कर इस प्यारी सी लड़की को बर्फ की मलका के महल में ले जाओगे। फिर छोटी ट्रोल लड़की ने बारासिंगा की रस्सियां खोल दी। गैडा और बारासिंगा निकल गए। वो बर्फ की मलका के महल तक पहुंचने तक दौड़ता रहा और वहां उसने गैडा को नीचे छोड़ दिया। तुम्हारे वापस आने तक मैं यहीं इंतजार करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को हिफाजत से घर पहुंचाऊंगा। गैडा बर्फ की मलका के ऊंचे महल की जानिब चल पड़ी कि यकदम ही हजारों बर्फ के कतरों से घिर गई और उसकी वजह से वो भड़क गए। वो बर्फ की मलका के हिफाजती थे। गैडा ने दुआ की। ठंड इतनी जबरदस्त थी कि वो अपनी सांसें देख सकती थी जो उसके मुंह से भाप की तरह से निकल रही थी। ये भाप बड़ी होकर फरिश्तों में बन रही थी और वो भाप से दुआएं कर रही थी। गैडा की दुआ मुकम्मल हुई तो एक बड़ी टुकड़ी उसके चारों जानिब खड़ी हुई थी। उन्होंने बर्फ के कतरों पर हमला किया और फिर जंग शुरू हुई। गैडा तेजी से बर्फ की मलका के महल की जानिब बढ़ी और फिर उसे क्या मिला? वो बर्फीली दीवार के अंदर था। के मेरे प्यारे के, आखिरकार तुम मुझे मिल गए। के ठंड से लगभग जम गया था और सिर से पैर तक वो नीला हुआ था। उसे अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि वो तुर्किश मिठाई का असीर हो गया था। इसी दौरान बर्फ की मलका ने उस पर मिठाई और बुरी चीजों का उस पर इस्तेमाल किया था। गैडा ने उसे गले लगाया और वो रोने लगी। उसके गर्म आंसू उसके सीने पर गिरे और उसके दिल में दाखिल होने लगे। उन्होंने बर्फ को पिघला दिया और के का दिल बन गया। उसके जिस्म में गर्मजोशी फिर से लौट आई और उसने गैडा को पहचान लिया और वो खुशी से रोने लगा। गैरडा, इतने वक्त तुम कहाँ थी? के मेरी जान, मैं तुम्हें तलाश कर रही थी। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। वो आपस में लिपट गए। हंसी और खुशी के मारे वो रो रहे थे। वफादार बारासिंगा उनकी राह देख रहा था और उन्हें आते देखकर वो नीचे की जानिब झुका और उन्हें अपनी पीठ पर दराज होने दिया। वो अपने घर के लिए उड़ कर गए। उनकी आंखों से खुशियाँ और शादमानी झलक रही थी और उसके फौरन बाद उन्होंने शादी कर ली और खुशी खुशी वो अपनी जिंदगी गुजारने लगे। समाप्त। रम्पलस्टिल्टस्किन। एक वक्त की बात है, एक गांव में बेहद गरीब बुनकर रहता था और उसकी एक बेहद ही हसीन बेटी थी। उसकी बेटी उसकी आंखों का तारा थी। वो हमेशा कहता कि उसकी बेटी किसी शहजादी से कम नहीं है। एक दिन जब शहजादा घुड़सवारी कर रहा था, उसने देखा कि एक लड़की नदी के किनारे बैठी कपड़े धो रही थी। वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है ये। शहजादे ने अपने दिल में सोचा। फिर उस लड़की से मुखातिब हुआ। तुम्हारा नाम क्या है?
इससे पहले कि लड़की कुछ कहती, उसके वालिद ने जवाब दिया, आपको जान के मसरत होगी बादशाह सलामत, वो मेरी बेटी है। मेरी बेटी से ज्यादा खूबसूरत लड़की आपने कहीं नहीं देखी होगी। शहजादे ने उस दुख्तर और वालिद की जोड़ी को बड़े मसरत से देखा, अपने शानदार घोड़े पर बैठकर। सचमुच आपकी बेटी बड़ी खूबसूरत है, शहजादे ने जवाब दिया, और बुनकर का सीना खुशी से चौड़ा हो गया। ये बात तो एकदम सच है, लेकिन उसकी काबिलियत उसके चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा बड़ी है। बुनकर ने कहा। तुम क्या कहना चाहते हो? शहजादे ने ताज्जुब से पूछा। दरअसल मेरी दुख्तर वो मेरी बुनकर कोई हुनर सोचने की कोशिश करने लगा जिससे शहजादा मुतासिर हो। उसकी आंखें शहजादे की आंखों से मिली और उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। अचानक उसने देखा कि कुछ मुर्गियां सूखी घास के आसपास दाना चुग रही थीं। याद आया, दरअसल वो मेरी बेटी वो सूखी घास में से सोना बुन सकती है। बुनकर ने बड़े ही एतमाद के साथ शहजादे से कहा। लेकिन अब्बा जान, उसने बोलने की कोशिश की क्योंकि उसे अपने अब्बा का ये झूठ बिल्कुल पसंद न आया। तब तो ये बड़ी खास लड़की है। शहजादा खुश होकर मुस्कुराते हुए बोला, अगर सचमुच तुम्हारी उंगलियां सूखे घास को सोने में बदल सकती है, तब तो तुम्हारी जगह मेरे महल में है। आओ मेरे साथ, मैं देखना चाहता हूँ क्या ये हकीकत है। शहजादे की बात मानने के अलावा उस लड़की के पास कोई और राह न थी। शहजादे के हमरा घोड़े पर सवार होकर वो लड़की महल चली गई। जब वो महल में तशरीफ लाए तो शहजादा उसे एक अंधेरी कोठरी में लेकर चला गया जो सूखी घासों से भरी हुई थी। कोठरी के बीचों बीच एक चरखा रखा था। शहजादे ने उससे कहा, कल सूरज उगने से पहले तुम्हें इस सूखी घास को सोने में तब्दील करना होगा, और अगर तुम इसे करने में नाकामयाब हुई और तुम्हारे वालिद साहब ने अगर मुझसे झूठ कहा तो तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। काल कोठरी का दरवाजा बंद होने की आवाज जब लड़की के कानों पर पड़ी तो वो इतनी खौफजदा हो गई कि वो रोने लग गई। अचानक उसने देखा कि एक बौना सा आदमी उसके सामने खड़ा है। क्यों रो रही हो? उसने दरियाफ्त किया। मैं बहुत अफसरदा हूँ, वो रोते हुए बोली। राजा ने मुझसे कहा है सुबह तक सारी सूखी घास को सोने में तब्दील करूं। मुझे नहीं पता मैं ये कैसे करूंगी। अगर मैं ये काम कर दूं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? बौने ने लड़की से पूछा। ये मेरे गले का हार, लड़की ने कहा। बौने ने वो हार अपने हाथों में लिया और चरखे पर बैठ गया। कुछ ही देर में उसने सारी सूखी घास को बुनकर उसे सोने के धागों में तब्दील कर दिया। सुबह सूरज निकलते ही शहजादा कोठरी के करीब आया और उसने कोठरी का दरवाजा खोला। अपने अतराफ में इतना सारा सोना देखकर शहजादा बेहद खुश हुआ। लेकिन शहजादे का लालच यही नहीं थमा। अपने सिपाहियों की फलाह बहबूदी के लिए उसे और भी बहुत सारा सोना चाहिए था। वो सिपाही जिन्होंने उसकी रियासत को दुश्मनों से बचाए रखा था, वो बुनकर की बेटी को एक बहुत बड़े अंधेरे कमरे में लेकर चला गया और उससे कहा, तमाम सूखी घास को सुबह तक सोने में तब्दील कर दो। उस रात लड़की फिर से ज़ारो कतार रोने लगी क्योंकि उसे खबर थी कि ये उससे न हो पाएगा। पर वो बौना शख्स फिर से उसके सामने आ गया और उसने दोबारा उससे पूछा, अगर मैं ये पूरी सूखी घास को तुम्हारे लिए सोने में तब्दील कर दूं तो इस इमदाद के बदले मुझे क्या मिलेगा? मेरी ये कमरबंद मैं तुम्हें दे सकती हूँ, उसने कहा। उस बौने शख्स ने वो कमरबंद हाथ में लिया और फिर से चरखा चलाने लगा और जल्द ही सोने के धागों से एक के बाद एक बड़े बड़े गोले बनते गए। जल्द ही सारी सूखी घास सोने में तब्दील हो गई। ये देखकर शहजादे की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे यकीन था कि अगर वो थोड़ा और सोना इकट्ठा कर ले तो उसकी रियासत में फिर से खुशहाली लौट आएगी। इसीलिए उसने महल के सबसे बड़े कमरे को सूखी घास से भर दिया और उस लड़की को अंदर दाखिल कर दिया। अगर तुमने ये सारी घास सुबह तक बुन ली तो मैं तुम्हें अपनी मल्लिका बनाऊंगा और उसके बाद तुम्हें सूखी घास कभी भी तब्दील नहीं करनी होगी सोने में। जब वो लड़की तन्हा थी तब वो बौना शख्स फिर से उसके सामने आ गया और बोला, सूखी घास को बुनने के बदले में मुझे इस बार क्या मिलेगा? मेरे पास आपको देने के लिए अब कुछ नहीं बचा, उसने जवाब दिया। तो मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ कि जब तुम मल्लिका बनोगी तो पहली औलाद तुम्हारी मेरे हवाले कर दोगी। बौने शख्स ने कहा। लड़की ने सोचा कि वो वक्त आने से पहले काफी कुछ बदल चुका होगा, इसलिए उसने उस शख्स की बात मान ली
और उससे वादा किया। जब शहजादा सुबह वापस आया तो उसने पूरा कमरा सोने से भरा पाया। अरे वाह, बुनकर की दुख्तर, तुमने मुझे 3 रातों में इतना सोना दिया है जितना किसी बादशाह के पास नहीं होगा। तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी होनहार भी हो। क्या तुम मेरी मल्लिका बनना पसंद करोगी? इस तरह बुनकर की दुख्तर, जिससे शहजादा बेहद पसंद था, वो उसकी बेगम बन गई। कुछ वक्तों बाद उसने एक बेटे को पैदा किया। वो बोने शख्स को दिया हुआ वादा पूरी तरह भूल चुकी थी। अचानक एक रोज वो शहजादी के कमरे में आया और कहने लगा, वादा निभाओ, औलाद दे दो। शहजादी काफी अफसरदा हो गई। वो बोने शख्स के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि चाहे जो कुछ हो उसकी सारी दौलत ले ले, लेकिन उसके बच्चे को न ले जाए। बोने शख्स ने कहा, तुम्हारी निगाहों में जुदाई का गम देखकर तुम्हें तुम्हारी औलाद बचाने का एक मौका देता हूँ। तुम्हारे पास 3 दिन हैं। तुमने अगर मेरे नाम का सही अंदाजा लगा दिया तो तुम्हारी औलाद तुम तुम्हारे पास रख सकती हो। शहजादी सारी रात जागती रही। वो सारे नाम याद करने की कोशिश करने लगी जो उसने आज तक सुने थे। जब वो बौना शख्स अगले दिन वापस आया, उसने नाम लेने की शुरुआत की। डेविड, एल्विन, फ्रांसिस। पर हर नाम सुनने के बाद वो एक ही बात कहता, नहीं नहीं, मेरा नाम ये नहीं है। दूसरे रोज शहजादी ने महल की सारी किताबें पढ़ ली और सारे पेचीदा नाम याद कर लिए। उसने बौने से दरियाफ्त किया, आपका नाम जॉन है? जॉनी या मैथ्यू? लेकिन वो हमेशा एक ही बात दोहराता रहा, नहीं नहीं, ये मेरा नाम नहीं है। तीसरे रोज उसने सिपाहियों को शहर के हर कोने में भेजा, ये देखने के लिए कि लोग अपने बच्चों को कौन कौन से नामों से पुकारते हैं। कुछ देर बाद एक सिपाही आया और कहने लगा, मल्लिका जहां, मैं ऐसा कोई नाम तो तलाश नहीं कर पाया, लेकिन दूर कहीं एक पहाड़ी पे जो जंगल है जहाँ सिर्फ जंगली जानवर रहते हैं, वहाँ मैंने एक बौने को आग के इर्द गिर्द नाचते गाते हुए देखा। कभी कोई ये नहीं पाएगा ये जान, कभी कोई ये नहीं पाएगा ये जान कि रम्पल्स्टिल्टस्किन है मेरा नाम, कि रम्पल्स्टिल्टस्किन है मेरा नाम। नाम सुनकर रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। जब वो बौना शख्स फिर से आया तो शहजादी ने उससे पहले पूछा, क्या तुम्हारा नाम एल्बर्ट है? नहीं। क्या तुम्हारा नाम रॉनी है? नहीं नहीं। तो क्या तुम्हारा नाम रम्पल्स्टिल्टस्किन है? तेरी, यही तो है, यही तो है। वो चिल्लाता हुआ महल से इस कदर भागा कि वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। हंस शहजादी। एक जमाने में एक ज़ईफ मलका रहती थी। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। जब शहजादी बड़ी हुई तब उसकी शादी एक शहजादी के साथ तय हुई। वो जिस रियासत में रहता था वो बहुत बहुत दूर थी। अम्मी, क्या मुझे ये करना पड़ेगा? हाँ मेरी प्यारी शहजादी, मैंने शहजादी से वादा किया है, तुम इसी से शादी करोगी। लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं ज़ईफ हो चुकी हूँ, जाने कब बुलावा आ जाए। मैं चाहती हूँ तुम्हारा शौहर तुम्हारी हिफाजत करे। लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ना चाहती अम्मी। लेकिन जैसा आपका हुक्म, मैं चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम तन्हा जाओ, इसीलिए तुम्हारे साथ एक खादिमा भेजती हूँ। और हाँ फलदा, तुम्हारा घोड़ा तैयार है क्या? हाँ अम्मी, हम जाने के लिए तैयार हैं। एक बात याद रखो, फलदा मेरे साथ ईमानदार है। मुझे यकीन है वो तुम्हारे साथ होने वाली हर खबर को बताएगा। जी अम्मी, आप मेरी फिक्र ना करें। फिर मलका और उसकी बेटी महल के बाहर गए, जहाँ खादिमा और घोड़ा उनका इंतजार कर रहे थे। आप चलो खादिमा, जो हुक्म शहजादी। अलविदा। मलका नहीं जानती थी कि खादिमा बहुत खराब थी। वो बहुत लालची थी और उसे शहजादी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो बिल्कुल भी मलका की बेटी को पसंद नहीं करती थी। वो खुद शहजादी बनने के ख्वाब देखती थी। शहजादी और खादिमा दोनों अपने घोड़ों पर सवार हुईं और उन्होंने महल छोड़ा। तवील सफर के बाद शहजादी को बहुत प्यास लगी और उसने खादिमा से कहा, खादिमा, उस झरने से तुम मेरे लिए थोड़ा पानी लाओगी? अगर तुम्हें प्यास लगी है तो घोड़े से उतरो और झरने पर झुककर खुद पानी पियो। शहजादी बहुत नरम थी। वो घोड़े से नीचे उतरी और झरने पर जाकर झुककर पानी पीने लगी। उसके बाद वापस आकर घोड़े पर बैठी।
तब खादिमा ने कहा, अब से मैं तुम्हें हुक्म दूंगी और तुम्हें उसे मानना होगा। चलो अब अपना लिबास मुझे दो और तुम मेरा लिबास पहनो। अब से मैं शहजादी हूँ। तुम मुझसे वादा करो कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी, वरना। मैं वादा करती हूँ। खादिमा ने फिर शहजादी के कपड़े पहन लिए और उसी के घोड़े पर जाकर बैठ गई। घोड़ा बहुत समझदार था, उसे मालूम था शहजादी कौन है, लिहाजा उसने खादिमा के हुक्म को नहीं माना। आखिरकार वो दोनों महल पहुँचे और शहजादा उन्हें मिलने आया। मेरे महल में आपका इस्तकबाल है प्यारी शहजादी। ये लड़की कौन है? ये मेरी खादिमा है और मेरी साथी भी, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। शहजादी, आपके पास इसके लिए कोई काम हो तो बताइए। वैसे मेरे पास एक लड़का है, उसका नाम कॉर्नार्ड है। वो हंसों को संभालता है, ये उसकी मदद कर सकती है। और शहजादी इस घोड़े को मार दें। क्या क्या क्या? ये तो अच्छा घोड़ा दिख रहा है। अरे मैं रास्ते में मरते मरते बची इसकी वजह से। असल में खादिमा को पता था कि फलदा बोल सकता है और शायद वो शहजादी को बता देगा कि उसने असली शहजादी के साथ कैसा बर्ताव किया। मैं घोड़े को मारूंगा नहीं, इसे कैद खाने में डाल दूंगा। शुक्रिया। नहीं। और फिर घोड़े को एक ऐसी जगह कैद कर दिया गया जहाँ वो किसी को न दिखे। दूसरे दिन खादिमा शहजादी से मिलने गई। अब तुम तुम्हारे घोड़े को कभी नहीं देख पाओगी। तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? तुम अपना काम करो, मैं शहजादे को बता दूंगी कि मुझे तुमसे भी छुटकारा चाहिए। फिर खादिमा वहाँ से चली गई और शहजादी रोने लगी। अचानक वहाँ एक बूढ़ा आया और उसने कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। बहुत शुक्रिया बाबा। कौन आज ये सारी बातें झाड़ियों के पीछे छुपकर सुन रहा था और उसने सोचा, ये कोई राज है। मैं भी वहाँ जाऊं, शायद बादशाह को भी इसकी मालूमात होनी चाहिए। घुड़सवार शहजादी को घोड़ा दिखाने के लिए ले जा रहा था। कोनार्ड भी उसके पीछे छुप कर गया। हाँ, पहुँच गए हम, लेकिन अब तुम एहतियात रखना। जी बिल्कुल। फिर वो ज़ईफ वहाँ से चला गया और शहजादी अंदर गई जहाँ घोड़े को रखा गया था। कोनार्ड भी उसके पीछे गया। जैसे उसने घोड़े को देखा उसने कहा, बेचारा फलदा, ये कैसे रखा है तुम्हें? ओह मेरी शहजादी, तुम भी परेशान हो। अगर मलका को पता चला तो गम होगा उन्हें। कोनार्ड ये देखकर हैरान रह गया कि घोड़ा भी बात कर सकता है। अरे मैं दीवाना हूँ क्या? ये घोड़ा बात कर रहा है। मुझे ये बादशाह को बताना ही होगा, लेकिन क्या वो मुझ पर यकीन करेंगे? पता नहीं, जरा सोचना पड़ेगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी शहजादी वहाँ से चली गई। दूसरे दिन रोज की तरह जब सब कुछ आम सा हो गया, शहजादी अपने बाल बना रही थी जो खालिस सोने की तरह थे। कोनार्ड को उसके कुछ बाल लेने की ख्वाहिश हुई। कोनार्ड, मुझे परेशान मत करो, छोड़ो मेरे बाल। लेकिन तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, मैं तुम्हारे बाल बनाऊं? नहीं, रुको, कहा ना कोनार्ड। लेकिन मुझे तुम्हारे बाल चाहिए। छोड़ो मुझे। शहजादी चिल्लाई और फिर उसने हवा को हुक्म दिया, इधर आओ, इधर आ जाओ हवा। कोनार्ड की टोपी को हवा में ले जाओ, दौड़ाओ इसे इधर से उधर जब तक मैं अपने बाल न बना लूं। फिर कुछ ऐसी हवा चली कि कोनार्ड की टोपी गांव से बाहर उड़ गई और उसे उसके पीछे दौड़ना पड़ा। जब वो वापस आया तब तक शहजादी अपने बाल बना चुकी थी। कोनार्ड को बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से चला गया शहजादी के बारे में बताने के लिए। बादशाह, मुझे नहीं रहना इस लड़की के साथ, मुझे खौफ आ रहा है अब। वो एक मासूम लड़की है, तुम उससे क्यों खौफ ज़्यादा हो? नहीं बादशाह, मुझे लगता है वो एक डायन है, बहुत ही खतरनाक डायन। डायन? तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। मुझे जल्दी से बताओ सब कुछ। ठीक है बादशाह, उस दिन ना मैं। कोनार्ड ने शहजादी के बारे में और उसके घोड़े के बारे में सब कुछ बताया और ये भी बताया कि उसकी टोपी कैसे उड़ी। तुम घर जाओ, मैं देखता हूँ क्या बेहतर है। दूसरे रोज बादशाह फलदा को जहाँ रखा हुआ था शहजादी के आने तक छुप कर बैठ गए। सुबह बखैर प्यारे फलदा।
صبح بخیر پیاری شہزادی. اگر تمہاری امی کو پتہ چلا تو انہیں کتنا رنج ہوگا. بادشاہ نے ان کی ساری باتیں سنی اور انہوں نے دیکھا کہ کوناڈ اسے کیسے پریشان کرتا ہے اور پھر کیسے اس کی ٹوپی ہوا میں اڑی اور پھر کسی کو دیکھے بنا واپس چلے گئے. دوسرے دن انہوں نے شہزادی کو بلایا. بادشاہ سلامت، آپ کو مجھ سے کوئی بات کرنی ہے؟ ہاں، مجھے بتاؤ. کوئی تمہیں پریشان کرتا ہے؟ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے. تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہو. شہزادی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اس نے اپنے دل کی باتیں بادشاہ کو بتائیں. اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا. بادشاہ نے سب کچھ دھیان سے سنا اور کہا، میری پیاری بیٹی، مجھے پتا تھا اس عورت میں کچھ گڑبڑ ہے. تمہاری خادمہ سزا کی حقدار ہے. وہ پوری زندگی قید خانے میں رہے گی. میرا بیٹا تم سے شادی کرے گا. بہت بہت شکریہ بادشاہ سلامت، لیکن میرے گھوڑے کا کیا؟ تم فکر مت کرو، میں اسے آزاد کر رہا ہوں. دوسرے دن شادی کا جشن محل میں ہوا. کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی اور پھر نیا جوڑا ہمیشہ ہی ہنسی خوشی رہنے لگا. کہانی ختم ہوئی. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and تھمبلینا. ایک مرتبہ ایک خاتون تھی. اس کی بے حد خواہش تھی کہ اسے ایک ننھا سا بچہ ہو، لیکن ایسے بچے کو کہاں ڈھونڈے. اس لیے وہ ایک نیک چڑیل کے پاس چلی گئی اور کہا، مجھے ایک ننھے بچے کی ولادت کی بے حد بے صبری ہے. برائے مہربانی کیا آپ مجھے بتا سکیں گی کہ میں اسے کہاں تلاش کروں؟ بے حد آسان ہے. یہ یو کا بیج آپ ہی کے لیے ہیں. اسے گملے میں رکھو اور آپ کو جو چاہیے وہ مل جائے گا. آپ کا بے حد شکریہ. اس نے وہ بیج لیا اور گھر جا کر پہلی فرصت میں اسے گملے میں بو دیا. جلد ہی وہ ایک پھول میں تبدیل ہو گیا اور ایک گھنٹے کی طرح دکھنے لگا. لیکن اس کی پنکھڑیاں کسی ہوئی تھی، اس کی کلی بھی تھی. کتنا خوبصورت پھول ہے یہ. اس خاتون نے اس کے سرخ اور زرد پنکھڑیوں کا بوسہ لیا اور جیسے ہی اس نے بوسہ لیا ویسے ہی وہ پھول نے بڑی آواز کی اور وہ کھل گیا. اس میں ایک ننھی سی بچی تھی. وہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت تھی، لیکن وہ انسان کی انگلی سے بھی بڑی نہ تھی. کتنی خوبصورت بچی ہے. آج سے میں تمہیں پکاروں گی تھمبلینا. ایک اخروٹ کا اس کے لیے پیارا سا جھولا بنایا گیا جس میں وہ رات کو سویا کرتی اور دن کے وقت وہ خاتون نے میز پر سجائے ہوئے پھولوں کے ساتھ کھیلا کرتی. پلیٹ میں ایک بڑے پھول کی پنکھڑی تیرتی تھی. تھمبلینا اس پنکھڑی کا استعمال ناؤ کی شکل میں کرنے لگی اور سفید گھوڑے کے بالوں کی جوڑی کا چپو بنا کر تیرنے لگی. وہ اس پلیٹ میں تفریح کر سکتی تھی. وہ گانا بھی بے حد سریلا گاتی تھی. جو بھی اس کی آواز سنتا اسے وہ میٹھا لگتا. ایک رات جب وہ جھولے میں آرام فرما رہی تھی تب ایک بھیانک مینڈک کھڑکی سے کود آیا اور اس کے قریب آ گیا. میرے بیٹے کے لیے یہ ایک اچھی اہلیہ رہے گی. اس نے اس اخروٹ کے کھول کو قابض کر لیا جس میں تھمبلینا سو رہی تھی اور اس کے ساتھ وہ کھڑکی کے باہر کود گیا اور باغیچے میں چلا گیا. مینڈک اپنے فرزند کے ساتھ رہتا تھا. وہ اپنی ماں جیسا ہی تھا لیکن پتلا اور بھیانک. زور سے مت بولو، وہ جگ جائے گی. وہ ہم سے دور نہ جائے، اسی کے لیے پانی کی سطح کے نزدیک کسی کمود کے پتے پہ بٹھائیں گے. اسے چھوٹی اور ہلکی ہونے کی وجہ سے اسے ایسے لگے گا وہ دویپ پر ہے. پانی کی سطح پر بڑے ہرے پتوں کے ساتھ بہت ہی خوبصورت کمل کھل رہے تھے. ایک پتا جو کنارے سے دور تھا اور تمام پتوں سے بڑا تھا، اس پتے پر ضعیف مینڈک نے اخروٹ کی کھول رکھ دی جس میں تھمبلینا آرام فرما رہی تھی. اگلے روز بیچاری ننھی تھمبلینا اٹھ گئی اور جب اس نے دیکھا کہ وہ کہاں ہے تو وہ زوروں سے رونے لگی. اس بڑے پتے کے چاروں طرف پانی ہی پانی تھا اور اسے کنارے کے قریب جانے کے لیے کوئی راہ نظر نہ آئی. تھمبلینا نیچے بیٹھی اور رو پڑی. اس کے قریب ہی نیچے پانی میں تیرنے والی چھوٹی مچھلیاں تھی. اس ننھی لڑکی کو دیکھنے کے لیے مچھلیاں اوپر آ گئی. جب انہوں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ بے حد افسردہ ہو گئی. ان سبھی نے پتوں سے جڑی ٹہنی کو اپنے دانتوں سے کاٹ دیا.
जिसकी वजह से वो पत्ता तैरने लगा और मेंढक की दस्तरस से काफी दूर चला गया। दूर, इतनी दूर कि वो उसे पकड़ ही न पाया। अब वो जहाँ मौजूद थी वो अनाज के खेतों का मैदान था, जिसका अनाज बहुत पहले ही निकाल दिया गया था, और जो बाकी बचा था तो वो थे सूखे डंठल, मानो किसी वीराने में फंसी हो। फिर वो एक घर के दरवाजे के पास पहुंची जो एक चूहे का था। उस प्यारे चूहे के पास कुछ खाने का अनाज था। उस गर्म से मकान में एक चूहा रहता था। थम्बलीना उस चूहे के दरवाजे के पास खड़ी रह के फकीरों की मानंद थोड़े से अनाज के लिए भीख मांगने लगी। उसे बेहद भूख लगी थी। ओ मायूस नन्ही बच्ची, मेरे गर्म कमरे में दाखिल हो जाओ और कुछ नौश फरमा लो। बदले में तुम्हें मेरा कमरा साफ करना होगा और मुझे मजेदार कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी। मुझे कहानियाँ सुनना बेहद पसंद है। खेत में रहने वाले उस ज़ईफ रहमदिल चूहे का थम्बलीना ने कहना मान लिया और उसे मजेदार कहानियाँ सुनाने लगी। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक दिन खेत का चूहा थम्बलीना के करीब आया। हमारे यहाँ एक मेहमान आने वाला है। हफ्ते में एक मर्तबा मुझसे मिलने मेरे पड़ोसी आते हैं और वो मुझसे भी अच्छे हैं। अगर तुम उसे अपने शौहर की सूरत में कबूल कर लो तो वो तुम्हारा बेहद ख्याल रखेगा, लेकिन वो कुछ देख नहीं सकता, वो अंधा है। तुम्हें उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर रिझाना होगा। थम्बलीना को ये मशवरा कुछ अच्छा न लगा। वो तो उस पड़ोसी के बारे में कुछ सोच भी न सकती थी, क्योंकि वो तो छछूंदर था। वो उनसे मिलने आया। खेत में रहने वाले चूहे ने छछूंदर की अमीरी और उसकी अक्लमंदी की तारीफें की और ये बताया कि कैसे उसका घर थम्बलीना के घर से 10 गुना बड़ा है। थम्बलीना को उसके लिए गाना गाना ही पड़ा और छछूंदर को थम्बलीना की सुरीली आवाज से प्यार हो गया, लेकिन वो उसे बता न पाया। उसने जल्द ही अपने घर से उनके घर तक एक लंबी सुरंग खोदी और खेत का चूहा और थम्बलीना को दावत दी, लेकिन सुरंग के रास्ते में पड़े हुए बेजान परिंदे के बारे में उन्हें आगाह भी किया। वो चोंच और पंखों वाला एक परिंदा था। सर्दियों की वजह से शायद उसकी वफात हो गई थी और सुरंग के बीचों बीच दफन हो गया था। छछूंदर ने सड़े हुए लकड़ी की मशाल ली। मशाल की वजह से उस अंधेरी जगह में रोशनी फैल गई। रास्ता दिखाने की खातिर वो उस लंबी अंधेरी सुरंग में उनसे आगे चलने लगा। जब उस फौत हुए परिंदे के पास वो पहुँचे, तब छछूंदर ने अपनी नाक छत पर डालकर एक बड़ा सा सुराख बनाया ताकि बाहर की रोशनी अंदर दाखिल हो सके। उन्होंने देखा कि सुरंग के बीचों बीच एक अबाबिल परिंदा बेजान हालत में पड़ा था। उसके खूबसूरत पर मुड़े हुए थे और उसका सर परों के बीच छुपा हुआ था। थम्बलीना को उसके लिए बहुत अफसोस हुआ, लेकिन छछूंदर ने अपने छोटे पैरों से उस परिंदे के जिस्म पर लात मारी और कहा, ये बहुत अच्छा है कि मेरे बच्चे परिंदे नहीं हैं, वरना वो चहचहाते रहते और ठंड के मारे भूखे मरते तो क्या होता। थम्बलीना खामोश रही, लेकिन सभी ने उस परिंदे की जानिब पीठ कर ली। थम्बलीना झुकी और उसने परिंदे के मुड़े हुए सर को पर से अलग कर दिया और उसकी बंद आँखों का बोसा लिया। गर्मी के मौसम में शायद मीठा नगमा गाने वाला यही था। तुमने मुझे बेहद खुशी दी है मेरे प्यारे परिंदे। उस रात थम्बलीना को एक पल भी नींद न आई, इसलिए वो उठी और कमरे के ठीक बाहर एक बड़ी सी चादर बुनने लगी। उसने वो चादर मरे हुए परिंदे के ऊपर रखी और जमीन पर गर्मी रखने के लिए उसके जिस्म पर फैला दी। उस चादर की वजह से परिंदे को गर्माहट मिलने लगी। अलविदा खूबसूरत नन्हे परिंदे, और पिछली गर्मी में तुम्हारे खूबसूरत नगमों के लिए मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। तब तमाम पेड़ सरसब्जो शादाब थे और उन पर सूरज की गर्म रोशनी पड़ी थी। उसने उसके सीने पर अपना सर रखा और उसे धीरे धीरे महसूस होने लगा कि अंदर कुछ तो धड़क रहा है। उस परिंदे का दिल था, वो मरा नहीं था। वो सिर्फ सर्दी की वजह से जम गया था और फिर से जिंदा होने के लिए गर्म हो चुका था। शुक्रिया नन्ही बच्ची, अब मैं बिल्कुल गर्म हो गया हूँ। चलो मेरी दोस्त, इस हरे भरे जंगल से दूर जाने के लिए तुम मेरे पीठ पर बैठ सकती हो। अब वही सर्दी का मौसम आ रहा है। मैं अपने दूर के घर की जानिब जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे हमरा चलोगी? मेरे पीठ पे तुम तो बैठ ही सकती हो। हाँ, मैं जरूर आऊंगी।
वो उसकी पुश्त पर बैठी। उसके बाद परिंदे ने जंगल के ऊपर से और तालाब के ऊपर से हवा में परवाज भरी। बहुत ही दूर वो उस परिंदे के घर पहुँचे। सूरज मामूल से ज्यादा ही रोशन था और ऐसे लग रहा था मानो आसमान हमेशा से कुछ दुगनी ऊंचाई पर है। ये मेरा मकान है। नीचे खिले हुए खूबसूरत फूलों में से अगर तुमने एक को चुन लिया तो मैं तुम्हें उसमें रख दूंगा और तुम्हारे दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छा होगा। नीचे ही खूबसूरत जर्द फूलों का बागीचा था। थम्बलीना के साथ उस परिंदे ने नीचे छलांग लगाई और उसे उनमें से सबसे बड़े फूल पर बैठा दिया। उस फूल के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा इंसान दिखाई देने पर उसे ताज्जुब हुआ। उसके कंधों पर बहुत ही चमकदार पर थे। वो उन फूलों का बादशाह था। लेकिन थम्बलीना को देखकर उसे बेहद मसरत हुई, क्योंकि उसने इतनी नन्ही सी लड़की कभी देखी ही न थी। फिर उसने अपने सर का ताज उतारकर थम्बलीना के सर पर रख दिया। उसने कहा कि उसे उसका नाम जानना है और क्या वो उसकी बेगम बनने के लिए तैयार है। हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी अम्मी को यहाँ लाना होगा। उसके बाद हम तीनों खुशी से यहाँ रह सकेंगे। वो राजी हो गया और थम्बलीना के लिए वो परों की जोड़ी भी ले आया। दोनों खुश हुए और जल्दी थम्बलीना की अम्मी भी वहाँ पहुँच गई। मेरी थम्बलीना, तुम्हें वापस देखकर मैं कितनी खुश हूँ, इसका अंदाजा तुम न लगा पाओगी। और तीनों खुशी खुशी रहने लगे। खत्म शुद।